Good morning, students. Yesterday we have just gone through the details about the earth. What is gravity? What is gravitation? What is gravity? What is gravitation? What is gravitational force? Between any two masses is the gravitational force. Gravity and gravitation difference मैंने पूछा था. अभी आप लोगों को डाउट के टाइम पूछूंगा कि what is gravity? What is gravitation? Then earth, sun और आपको ढूंढने के लिए बोला था कि about the earth, about sun, about moon इन बारे में. So actual shape of earth is not spherical. Earth is bulged at the equator. Earth is being flat at the poles and bulged at the equator. It is the oval shape like egg. So that oval shape like egg is because of the centrifugal action. मैंने कहा आपको जब कभी अर्थ फॉर्म हुई होंगी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से लिक्विड स्टेट में, यहाँ कलेक्शन ज्यादा होगा, इधर कम रह गया, इसलिए. तो रेडियस एट द इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल्स. At poles radius is less, at equator radius is more. That difference is of how many kilometers? Radius at the equator is more than the radius at poles by how many kilometers? ये आपको ढूंढने के लिए बोला था. ग्रेविटेशन लेसन में आपको बुक्स में मिलेगा. कुछ ऐसा आंसर है 20-25 किलोमीटर. अब इसमें से कौन सा आप ढूंढो? ऐसा आंसर इसमें से है. तो एक ही बार आपको एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ कंसिडर करना है व्हाइल लर्निंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये आपको में भी था. बाद में every time earth will be considered to be spherical, so that radius at equator, radius at pole, all will remain same. Then about the earth, details about the earth. Throughout the lesson आपको हर क्वेश्चन में अर्थ का काम है. तो mass of earth every time, radius of earth every time will be required. Equator, axis, these terms are required. Then what are for radius of earth? The value of radius of earth, I hope सब लोगों ने ढूंढ के रखा होगा इसको. कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर. रेडियस ऑफ अर्थ इज बीइंग 6400 किलोमीटर. इसको हम मीटर में अगर करना है तो इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, 10 टू द पावर ऑफ 3 और ये 2 0, 10 टू द पावर ऑफ 5, 64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर. पहले किलोमीटर के मीटर करने के लिए 10 टू द पावर ऑफ 3000 मीटर, 1000 और ये 2 0 मतलब 10 to the power of 5. Mass of Earth exactly is taken as 5.98 into 10 to the power of 24. Mass of Earth is 5.98 10 to the power of 24. Whereas in general, कल मैंने 2.98 ऐसा वर्ड बोला था तो 5.98 था करेक्ट. तो 5.98 round figure can be taken as 6 into 10 to the power of 24. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हर बार आपको 6 इन 10 टू पावर 24 यूज करना है. बट इफ पर्टिकुलरली गिवन देन यूज गिवन वैल्यू लाइक 5.98. अदरवाइज एवरी टाइम 5.6 इन 10 टू पावर 24. नाउ व्हाट इज मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ? मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अराउंड 5500 kg पर मीटर क्यूब. दिस वैल्यू शुड बी नोन टू अस. ये वैल्यूज अपने को मालूम रहना. देन अबाउट ये हो गया अर्थ के बारे में. Then about volume of earth is volume of a sphere. Volume of sphere is 4/3 pi r cube. Then as mean density is mass upon volume. Any density is what? Mass per unit volume. So mean density is mass per unit volume. Complete mass, complete volume. Take the small part, small sphere from the earth. Earth के मटेरियल से बना हुआ sphere लिया तो उसका मास भी, लेकिन density is the property of material, तो mass to volume will remain constant. So mass is density into volume. Volume is 4/3 pi r cube complete अर्थ के लिए. Part of earth, part of that volume. और ये मास आपको इस तरह से रिप्लेस करना होगा. ये सभी फार्मूले जब आएंगे आगे कोई भी फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कन्वर्ट करना है तो उसमें का मास आपको रिप्लेस करना होता है. Then about distances. Now you have to learn the gravity of earth. As your gravity of earth, all distances are to be measured with respect to center of earth. सारे डिस्टेंसेस अर्थ के सेंटर से कितने होते हैं? तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक रेडियस ऑफ अर्थ. अब बॉडी कहां पर है उस पर डिपेंड करेगा. सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा. बॉडी अर्थ से काफी दूर भी हो सकती है, अर्थ के पास में भी हो सकती है, अर्थ पर भी हो सकती है, अर्थ को होल करके अंदर भी रख सकते हैं एट सम डेप्थ. अर्थ के अबव जो गिनेंगे वो हाइट, अर्थ के अंदर जो गिनेंगे वो डेप्थ. सो आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ. एच इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस. D is depth below the earth surface. ये depth वो height. Then for a body inside the earth,
जो बॉडी अंदर है, बॉडी नंबर 4 ये, इस बॉडी के लिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना रहेगा? पूरा लेते तो ये आर होता रेडियस, उसमें से डी कम हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग? स्मॉल आर इक्वल टू आर माइनस डी। इस बॉडी के लिए पूरा डिस्टेंस आर, आर में से डी गया तो बचा कितना? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर माइनस डी इक्वल टू व्हाट? स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस डी इज व्हाट? स्मॉल आर। देन फॉर अ बॉडी आउटसाइड द अर्थ, कोई बॉडी अर्थ से अगर दूर है, तो दूर है मतलब उसकी हाइट कितनी है वो भी मैटर करती। अगर उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब इट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अभी मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर का 1% होता है 64 किलोमीटर। 6400 का 1%, 100 से डिवाइड किया उसको, दैट इज 1%। रेडियस ऑफ अर्थ अगर वन, हाइट ऑफ द पॉइंट अगर रेडियस ऑफ अर्थ के 1% या उससे भी कम है, देन इट इज वेरी स्मॉल। अगर उससे ज्यादा है देन इट इज कंसीडर्ड टू बी लार्ज। तो इफ द एच इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट ज्यादा है, देन इट इज कंसीडरेबल टू अर्थ। देन स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच, स्मॉल आर इक्वल टू व्हाट? आर प्लस एच। अर्थ के बाहर की बॉडी के लिए हमेशा हर क्वेश्चन में काम पड़ने वाला है, इसलिए इसको रिवाइज कर रहा हूं। स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच। देन डी इज द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे आएगा वापस से। नाउ आउटसाइड द अर्थ, बहुत अर्थ पर तो नहीं है लेकिन अर्थ के बहुत पास में है। बहुत पास में मतलब अर्थ पर नहीं है, अर्थ से कुछ दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? वेरी स्मॉल, हाइट लेस देन 64 किलोमीटर। अगर उसकी हाइट लेस देन 64 किलोमीटर है, मतलब 1% से कम है, देन व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल टू r, जब h 64 किलोमीटर या उससे कम है तो उसको निग्लेक्ट करना है। वैसे स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच, बॉडी को हाइट तो है लेकिन हाइट बहुत कम है तो h छोड़ दो, h निग्लेक्ट करो, तो स्मॉल आर इज नियरली इक्वल टू कैपिटल आर। When h is very small, it is to be neglected. Then small r is nearly equal to r, though not equal to, but can be taken r equal to. h is very small as compared to r. इस बॉडी के लिए वर्डिंग होगा for small heights or close to surface of earth. Then on the surface of earth, अब बॉडी exactly अर्थ सरफेस पर ही है। अगर बॉडी exactly अर्थ सरफेस पे है तो उसके लिए हाइट कितनी होगी? सरफेस पर ही है, हाइट तो सरफेस से गिननी होती है। बॉडी सरफेस पर ही है मतलब हाइट 0 होगी, उसकी हाइट बिकम 0। So small r is nothing but equal to r plus h. Or small r equal to small r equal to r plus h. So small r nearly equal to what? Capital R. Not nearly, यहाँ पर exactly रहेगा क्योंकि h is 0 यहाँ पे। Now for a body either on earth surface or close to earth surface, h is very small as compared to r. तो on earth surface h r equal to r, close to surface small r equal to r. यहाँ h negligible है, यहाँ h 0 है। न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है सब कुछ। देन अब आगे पूछा था मैंने इनसाइड द अर्थ, ये भी बताया स्टार्टिंग में, स्मॉल आर इक्वल टू आर। देन सन के लिए व्हाट इज द मास ऑफ सन? मास ऑफ सन है 2 into 10 to the power of 30। मास ऑफ सन इज 2 into 10 to the power of 30 kg। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इतना है कि सन से लेके अर्थ तक लाइट को आने के लिए 500 सेकंड लगते। लाइट नीड 500 सेकंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। अब आपको लाइट का टाइम मालूम हो गया, आपको लाइट का स्पीड भी मालूम है। अगर आपको लाइट का स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो डिस्टेंस आप खुद निकालो कितना आता, मीटर में और किलोमीटर में। ये आपके लिए अभी मैंने छोड़ दिया। अभी और एक पॉइंट बताया आपको कि लाइट रिक्वायर 500 सेकंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस, ये आपको निकाल के रखना है। मास ऑफ मून, ये दो वैल्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून, व्हाट इज द मास ऑफ द मून। स्टिल मैंने 2 पॉइंट्स आपके लिए छोड़ दिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ये कुछ 15 आता, 3.84 कुछ आता, मैंने अंदाजे से नंबर बोल दिया, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं दिया, आपको एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है। तो ये कल जो आपको कुछ पॉइंट्स पूछे थे उसके बारे में। देन इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास मैंने आप लोगों को पूछा, मास व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटेशनल मास, तो उसका रेशियो क्या आता, ये आप लोग खुद ढूंढ के रखो। इसका काम लेसन में नहीं है लेकिन आपको में पढ़ने को मिलेगा। इसका काम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। बाद में और एक पूछा था आपको, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी ये आप ढूंढ के रखो। आगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट पढ़ेंगे
तब इसका काम पढ़ने वाला है कि बॉडी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जो कल आपको पढ़ाया था उसके बारे में शॉर्ट में रिवीजन हो गई। नाउ तो कल अपने यहाँ तक के पढ़ के रखा हुआ है, यस्टरडे और लर्न अप टू दिस पॉइंट। तो अभी इसके आगे आपको सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वही न्यूटन्स उसके बारे में पढ़ते पहले कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या है एग्जैक्टली। तो ये कल के सारे पॉइंट्स हो गए, ऑल पॉइंट्स विच यू लर्न यस्टरडे। होप दैट सभी पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अभी आगे बढ़ते उसके। तो सबसे पहले आता है लेसन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नॉट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेसन ही अलग, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अर्थ, हम लोग ह्यूमन अर्थ पे रहते, अर्थ पे रह के सब सोचते कि स्पेस में क्या चलता होगा, यूनिवर्स में क्या चलता होगा सबको। तो अर्थ पे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये जब से अर्थ बनी तब से है। ऐसा कुछ है क्या? वो न्यूटन के सामने एप्पल गिरा, फिर न्यूटन ने सोचा और फिर अर्थ ने खींचना शुरू किया? नो, इट इज राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। फिर न्यूटन ने जब ये देखा कि एप्पल टूट के नीचे आया, इतना एक सिंपल सी एक्टिविटी देख के एक लॉ बनाया जो यूनिवर्सल है, ऑल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल, नॉट वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स एप्लीकेबल होता है। सन टू प्लूटो टू जुपिटर, सन टू मार्स, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। दैट यूनिवर्सल लॉ गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, that's what is called as Newton's law of gravitation. तो what that Newton's law of gravitation is? अभी अपने टेक्स्ट बुक में जो है that is the final form of the law. कोई चीज ऐसे एकदम फाइनल फॉर्म में नहीं बनती कभी, पहले कुछ सोचा होगा, फिर और कुछ करेक्ट किया होगा, फिर और कुछ सोचा होगा, लाइक दिस। तो इसको फाइनल फॉर्म तक जाने के लिए क्या क्या स्टेजेस आई होंगी? 2 स्टेजेस। तो ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है न्यूटन का, वो पहले एप्पल एक बॉडी है, अर्थ एक बॉडी है, एप्पल पेड़ से टूट गया, अर्थ की तरफ आया। तो व्हाट इज थॉट अबाउट? अर्थ एक बॉडी है, एप्पल एक बॉडी है। तो पहले उसने बॉडी वर्ड्स के बारे में सोचा, दैट एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट बाय द न्यूटन्स लॉ? दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अबाउट मासेस। तो व्हाट वाज द स्टेटमेंट? आपको सिर्फ कुछ रेफरेंस बुक्स में या फिर अगर आपने पूरा एनसाइक्लोपीडिया निकाला न्यूटन्स थ्योरी का तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, बाकी आपके एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसका एक जगह आगे काम है, इसलिए बता के रख रहा हूं। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? According to Newton's first law, every body attracts every other body. Every body, body क्या use किया? Body. Every body attracts. Gravitational force purely attractive होता है. Attracts every other body. Every body attracts every other body. Every body attracts every other body. Last के 2 वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का आपको आगे काम पढ़ने वाला है। Every body attracts every other body outside it. ये 2 वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, outside it. Every body attracts every other body outside it. अर्थ, अर्थ के आउटसाइड था एप्पल, एक बॉडी है, every body attracts every other body outside it. फिर मन में क्वेश्चन आने को होना, आउटसाइड को अट्रैक्ट करता, अगर वो बॉडी इनसाइड रही तो फिर तो बॉडी इज इनसाइड, देन व्हाट? एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी व्हेन इट इज आउटसाइड। तो व्हेन द बॉडी इज इनसाइड तब क्या होता है उसके बारे में, जिसका आपको आगे काम पढ़ने वाला है व्हाइल लर्निंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ। सब ये कंप्लीट अर्थ है अभी, स्फेरिकल इन शेप। अभी हर जगह आपको स्फेरिकल शेप ही कंसीडर करना है। कंप्लीट मास ऑफ अर्थ इज m, पूरा मास ऑफ अर्थ m है। एक बॉडी दूसरी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, बॉडी अभी बाहर है अर्थ के, तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। अभी बॉडी अर्थ के बाहर है, उसको अट्रैक्ट करेंगी। वो बॉडी अगर अर्थ पर भी आ गई, पास में आ गई, अर्थ पर आ गई, देन ऑल्सो वो बॉडी अर्थ से बाहर है, तो अर्थ विल अट्रैक्ट द बॉडी। होल मास ऑफ अर्थ, अर्थ के पूरे मास के लिए बॉडी आउटसाइड है,
इसलिए अर्थ का पूरा मास उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर वो बॉडी अब अर्थ के अंदर आई तो अर्थ को होल्ड किया, अर्थ के अंदर गए तो अब क्या, अर्थ को ऐसा होल्ड किया ड्रील और अर्थ के अंदर गए, अर्थ के अंदर जाने के बाद यहां तक हम पहुंच गए, एट सम डेप्थ चले गए, अर्थ के अंदर अप टू सम डेप्थ गए हम लोग, लाइक दिस, अप टू सम डेप्थ। अब तो ये बॉडी अर्थ के अंदर है, नाउ दिस बॉडी इज इनसाइड द अर्थ। स्टेटमेंट क्या है, आउटसाइड इट, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। आउटसाइड रहता तो अट्रैक्ट करता, ये तो अर्थ के अंदर आ गया, ये अर्थ के अंदर आ गया, बट स्टिल इट इज आउटसाइड फॉर सम मास ऑफ अर्थ। अभी भी वो अर्थ के कुछ मास के लिए आउटसाइड है। कितने मास के लिए आउटसाइड है, फॉर हाउ मच मास इट इज स्टिल आउटसाइड, इट इज स्टिल आउटसाइड फॉर दिस मच ऑफ मास। अभी भी ये इतने मास के लिए आउटसाइड है। अंदर का जो मैंने स्फीयर निकाला, अर्थ का ही छोटा सा पार्ट लिया, पार्ट ऑफ द अर्थ एज अ स्फीयर, पार्ट ऑफ अर्थ लिया, तो अभी अंदर का जो स्फीयर है, ये डेप्थ हो गई डी, ये पूरी रेडियस आर, ये रेडियस आर आउटर की, ये इनर वाला स्फीयर, इसकी रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर कैसे निकलेगा, ये पूरा आर, उसमें से डी गया तो बचा कितना ही है, आर माइनस डी, तो स्मॉल आर इज नथिंग बट आर माइनस डी। तो अब बॉडी पोजीशन ए पूरा मास ऑफ अर्थ फोर्स लगाएगा, एट पोजीशन बी पूरा मास ऑफ फोर्स, पूरा मास ऑफ अर्थ फोर्स लगाएगा। क्यों, ए पूरे मास के लिए आउटसाइड है, बी पूरे मास के लिए आउटसाइड है, एट पोजीशन सी वो पूरे मास के लिए आउटसाइड नहीं है। अंदर आ गया, अर्थ के अंदर आने की वजह से पूरा मास उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। लेकिन अब जितने स्फीयर के लिए आउटसाइड है, कितने स्फीयर के लिए, ग्रीन वाला स्फीयर निकाला मैंने, इसका मास है सपोज m डैश। तो अभी एट पोजीशन सी इज इनसाइड फॉर एंड पोजीशन सी इज आउटसाइड फॉर। पोजीशन सी इज इनसाइड फॉर विच मास, पोजीशन सी इज इनसाइड फॉर मास m एंड पोजीशन सी इज आउटसाइड फॉर मास m डैश। पोजीशन सी जो है वो मास m डैश के लिए आउटसाइड है और मास m के लिए साइड है। तो नाउ पोजीशन सी विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ विच मास, जिसके लिए आउटसाइड है। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। ये बेसिक स्टेटमेंट ऑफ, बेसिक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिस बॉडी पे आपको फोर्स निकालना है वो सेकेंड बॉडी के आउटसाइड होना। ये पूरी अर्थ, ए इज आउटसाइड ऑफ कंप्लीट अर्थ, इसलिए कंप्लीट मास विल एक्सर्ट द फोर्स। बी इज ऑल्सो आउटसाइड फॉर एम, कंप्लीट एम, तो बी भी एक्सपीरियंस पूरे मास का फोर्स। लेकिन सी पोजीशन जो है, अंदर गए अर्थ के, एट पोजीशन सी इट इज इनसाइड द कैपिटल एम बट आउटसाइड फॉर दिस एम डैश। सो सी इज आउटसाइड फॉर व्हाट and inside for what, C is inside for M and outside for M dash. That's why at C force will be experienced due to M or due to M dash, due to M dash. A and B are outside for M, hence force due to M, पूरे मास का फोर्स लगेगा। बट पोजीशन C is inside for M, inside for M and outside for M dash, and outside for M dash। इसलिए C will experience the force due to what, force due to, किसका फोर्स लगेगा, किसका नहीं लगेगा। It will not experience force due to जिसके इनसाइड है, and it will experience the force due to जिसका आउटसाइड है। आउटसाइड किसका है, आउटसाइड है m डैश का, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू m डैश ओनली, नॉट ड्यू टू m। इस पर फोर्स ऑफ m नहीं लगेगा। इसका काम एक बार पढ़ने वाला है, लर्निंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ, बाद में कभी काम नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन एक बार एक डेरिवेशन में काम पढ़ने वाला है, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया। तो दिस वाज द ओरिजिनल लॉ, इनिशियल स्टेटमेंट थॉट बाय न्यूटन। इनिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने लिख के रखा कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। फिर न्यूटन ने और के ऊपर सोचा। इज दैट क्लियर, ये समझ में आया कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। आउटसाइड है तो पूरा मास लगाएगा, अगर बॉडी अंदर आ गई चांस तो पूरा मास नहीं लगाएगा।
अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आपको समझा हुआ तो एक क्वेश्चन, अगर इस बॉडी को मैं अर्थ के सेंटर पे लेके जाऊं, पूरा ऐसा ड्रिल किया, अर्थ को होल किया आर पार ऐसे, और फिर अर्थ के सेंटर पे गया, तो ये बॉडी अगर अर्थ के सेंटर पे गई तो क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ अर्थ बॉडी चली गई, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ बॉडी गई, मतलब बॉडी का सेंटर और अर्थ का सेंटर कौन साइड हो गया? तो वो बॉडी के ऊपर अर्थ का कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर सोच के रखो विथ एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट। तो बाहर है तो पूरा अर्थ का मास फोर्स लगाएंगा, सरफेस पे पूरा मास लगाएंगा, अंदर अंदर जितना डीप जाएंगे उतना इफेक्टिव स्पीयर जो अर्थ का छोटा छोटा होते जाएगा, मास फोर्स लगाने वाला कम होते जाएगा, तो फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। एट सेंटर क्या होगा, आप लोग सोच के आंसर लिख के रखना आप लोगों कि व्हाट अबाउट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हो गया ओरिजिनल स्टेटमेंट, इसका एक बार काम है, बाद में नहीं। अब न्यूटन ने सोचा कि एप्पल एक बॉडी है, अर्थ एक बॉडी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स, हर पार्टिकल को मास है, एवरी पार्टिकल हैविंग अ मास। तो व्हाट अबाउट दोस पार्टिकल्स, कि अगर ये तो बॉडी बॉडी के लिए हो गया, लेकिन अब एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, दूसरी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल को मास भी होता है। देन ही अगेन मेड इट मोर करेक्ट एंड प्रिसाइज फॉर द पार्टिकल साइज मास, पार्टिकल साइज मास के लिए इसको और एक्यूरेट कर लिया। देन ही गिवन द स्टेटमेंट जो अपने टेक्स्ट बुक में आप, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट। देन ही केम टू द पार्टिकल पार्टिकल, न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट मासेस। ये आगे आपको स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगा, ऐसा एक स्टेटमेंट उधर में, कूलम्स लॉ इज फॉर द पॉइंट चार्जेस और न्यूटन्स लॉ इज फॉर द पॉइंट मासेस, जो फाइनल है, पहले बॉडी के लिए दिया था, फिर उसको करेक्ट करके यूज किया फॉर द पार्टिकल्स। तो व्हाट इज नाउ न्यूटन्स लॉ, उन्होंने फिर पार्टिकल पार्टिकल के बारे में सोचा कि कोई एक बॉडी आपको गिवन है, इस बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इन हर पार्टिकल को मास है, ये पार्टिकल्स एक बॉडी में है, मतलब बाउंड है एक दूसरे से बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वेयर एज फोर्स ड्यू टू देयर मासेस, उनका जो कुछ मास है वैसे वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी कोई बॉडी है, दोनों बॉडी, ये बॉडी इसके लिए आउटसाइड है, ये बॉडी इसके लिए आउटसाइड है, बॉडी ए एंड बॉडी बी विल अट्रैक्ट ईच अदर, बॉडी ए बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। At the same time, what about the molecules bit of body A and molecules of body B? Molecules inside the body A. According to Newton, पहले body body के लिए every body attracts every other body outside it. A is outside for B, B is outside for A. दोनों एक दूसरे को attract करेंगे, दोनों bodies एक दूसरे को attract करेंगे। Now what about the molecules? हर molecule को भी mass है, कम है लेकिन mass तो है। What about the molecules of body A? बॉडी ए के मॉलिक्यूल, बॉडी ए का एक मॉलिक्यूल बॉडी ए के ही दूसरे मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करता, बॉडी ए के अंदर का एक मॉलिक्यूल बॉडी ए के अंदर के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता। एट द सेम टाइम वैसे ही बॉडी बी में का एक मॉलिक्यूल बॉडी बी के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता। एट द सेम टाइम बॉडी ए का एक आधा मॉलिक्यूल बॉडी बी के दूसरे एक आधे मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करता, मीन्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। अब बॉडी ए पूरी नहीं है, बॉडी बी पूरी नहीं है, दो मॉलिक्यूल है, देन आल्सो फोर्स इज देयर। अकेली बॉडी ए है और उसमें के दो मॉलिक्यूल है, इनमें भी फोर्स। अकेली बॉडी बी है, उसके दो मॉलिक्यूल, उनमें भी फोर्स। दोनों बॉडीज है, उनमें भी फोर्स। मीन्स नाउ इट इज मेड टू द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। व्हाट द स्टेटमेंट इज कि एवरी मॉलिक्यूल, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल वर्ड यूज होता है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर। पहले क्या था, बॉडी बॉडी के लिए, अब एक ही बॉडी में के दो पार्टिकल, उनको भी मास है, वो भी अट्रैक्ट करेंगे। तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद सर्टेन फोर्स। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद सर्टेन फोर्स। अब वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करना, ये न्यूटन ने बताया। न्यूटन एक्सप्लेन अबाउट दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट फोर्स। अट्रैक्ट तो करता, सबको मालूम है, फिर न्यूटन ने क्या नया बताया। अगर आपको ऐसा लगता तो आप बनाओ अपना फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना। अट्रैक्ट तो आपको भी कर दिया, न्यूटन ने भी किया था, एप्पल को भी किया था। तो न्यूटन की स्पेशलिटी क्या थी, उन्होंने वो फोर्स कैलकुलेट करके दिया कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। नहीं तो अर्थ अपने को खींचती तो सबको मालूम है। तो व्हाट द न्यूटन्स लॉ,
अबाउट न्यूटन्स लॉ ये हो गया बॉडी बॉडी पार्टिकल पार्टिकल। अब न्यूटन्स लॉ जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसका करेक्ट फाइनल स्टेटमेंट कौन सा है जो आपको अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ने को मिलेगा, आपको यूज करना है। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इट सेज दैट एवरी पार्टिकल, अब वहां बॉडी वर्ड था, यहां क्या है? एवरी पार्टिकल। इट इज फॉर अ पार्टिकल मींस पॉइंट मास। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, अब बॉडी वाज नहीं, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स every other particle of matter, every other particle of matter, particle of matter, particle particle के लिए every particle of matter attracts every other particle of matter with a force, with a force। ठीक है, ये होगा अट्रैक्ट किया, कितना किया इसके आगे का पार्ट उसको एक्सप्लेन करेंगे। Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is, अभी ये result given by Newton, which is नहीं, ऐसे कैसे कैलकुलेट किया, किस पर डिपेंडेंट करता, कैसे निकालना, which is directly proportional to, which is directly proportional to, which is directly proportional to, which is directly proportional to the product of masses, which is directly proportional to product of masses पहला, and मतलब जितने बड़े बड़े masses रहेंगे, ज्यादा masses ज्यादा प्रोडक्ट होगा, into m2 m1 m2, more the mass more is the force, less the mass less is the force। ये तो नेचुरल है, अर्थ हम सबके लिए सेम है। इसके बाद ज्यादा मास है और उसको ज्यादा खींचती, मास है और उसको कम खींचती। more the mass more is the force, less the mass less is the force, means डिपेंड्स ऑन द मास। अगर आप खा के ज्यादा मास जमा किया तो अर्थ आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती, अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है तो कम अट्रैक्ट करती। मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दूसरा कौन सा फैक्टर? अर्थ से दूर जाओ तो फोर्स उतना ही रहेगा कि कम होगा, अर्थ के पास में इंक्रीज और डिक्रीज। कोई भी ऑब्जेक्ट दोनों पास में जाओ तो फोर्स, दूर जाएंगे तो यार their effectiveness of each other will go on decreasing, पास में रहे तो बढ़ेंगी। means it depends on distance also। how depends? more, what do you think? more distance less force की more force, more the distance less the distance, more distance more force, more distance less force, less distance more force। so it is directly proportional to product of masses and inversely proportional to, and inversely proportional to what? And inversely proportional to square of distance between them, square of distance, square of distance between them, square of distance between them, and acts along the line joining them, and acts along the line joining them। अभी अगर आप लोग मेरे सामने यहाँ होते तो मैं आपको चेक कर देता। अभी मैंने इसलिए पूरा स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख दिया, ये आप लोगों को बाद में फेयर करना है। न्यूटन्स लॉ, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses, product of their masses, product of their masses, and inversely proportional to square of distance between them, directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। स्टेटमेंट पूछने के बाद बताते आने को होना कि व्हाट द स्टेटमेंट इज। स्टेटमेंट विचारलं सांगता आलं पाहिजे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट मासेस। देयर आर 2 पॉइंट मासेस, एक m1 एक m2। अभी यहाँ बॉडी नहीं निकालना आपको, you have to draw the masses only, m1 m2। let the distance between them is small r, r as a distance। now these two masses will attract each other, ये दोनों masses एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे with certain force, that is F। F is the gravitational attractive force towards each other। so by Newton's law what you can write?
let m1 m2 are the masses by Newton's law of gravitation. By Newton's law इतना ही लिखेंगे, अब gravitation पढ़ रहे तो Newton's law of gravitation. By Newton's law, this F is proportional to m1 m2 and this F is inversely proportional to r square, directly proportional to product masses, inversely proportional to square of distance between them. Then F is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance. Yoga statement. F is proportional to m1 m2 and inversely to r square. Then for every proportionality there is some constant. हर proportionality का एक constant होता है. Here the constant given by Newton. So that constant given by Newton is here capital G. F equal to capital G m1 m2 upon r square. तो आप लोगों का G मतलब gravity. G is not gravity. G is what here? Where G is the constant of proportionality and this G is called as constant. ये G constant है. कितना constant है? इस G की वैल्यू टाइम पर डिपेंड नहीं करती. मतलब कल कितना था, आज कितना है, कल कितना रहेगा. How much it was yesterday, how much is today, how much will be tomorrow, will remain same. Independent of time. Secondly, independent of place. अर्थ पे कितना है, जुपिटर पे कितना है, मार्स पे कितना है, स्पेस में कितना है, ये everywhere it remains same. It remains same with respect to time, with respect to place, does not change at all. That's why ये पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होता. कहीं भी चले जाओ जितना का उतना ही रहता. That's why it is called as universal gravitational constant. Why called as universal? Because its value remains same all over the universe. इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती, कहीं चेंज नहीं होती, independent of place and time. That's why called as what? Universal constant. So G is called as nothing but universal gravitational constant. It is called as universal gravitational constant. ये universal gravitational constant है. Constant है तो वैल्यू भी मालूम रहना उसकी. ये वैल्यू कभी एग्जाम में गिवन नहीं रहेंगी. It should be known to us. ये अपने को मालूम होना. The value of G is nothing but 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square upon kg square. ये value of capital G. Capital G is called as what? Universal gravitational constant, which doesn't change either with respect to time or with respect to place. कहीं change नहीं होता, मीडियम पर depend नहीं करता. तो it's about the Newton's law of gravitation. What is the statement? Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. And ये directly proportional to masses, inversely to square of distance. Constant of proportionality is G, where G is called as what? Universal gravitational constant. उसकी value है 6.67 10 to the power of minus 11 in SI units. हाँ, in SI units ये value हो गई. अगर मैंने SI की बताई तो G in CGS आपको ढूंढना है. G in CGS यूनिट कितना आएगा ये आपको ढूंढना है. G की वैल्यू कितनी रहेंगी इन CGS यूनिट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? दैट यू हैव टू कैलकुलेट कि G की वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी आने वाली है. तो ये न्यूटन्स लॉ, ये न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट, ये न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन. अभी ये लेसन का एक पार्ट हो गया स्टेटमेंट. सिर्फ स्टेटमेंट याद करके फॉर्मूला कुछ नहीं होगा. अब इसके एप्लीकेशंस मतलब न्यूमेरिकल्स. इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहते हैं. न्यूटन्स लॉ. और मैं आपको एक सिमिलरिटी में बता देता हूं, इस लेसन का पार्ट नहीं है, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में का फोर्स रहेगा, वो कूलम्स लॉ रहेगा. कूलम्स लॉ भी लगभग ऐसे ही है. वहां दो चार्जेस रहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 Q2. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 Q2 और डिस्टेंस रहेगा R. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डायरेक्टली electrostatic force is directly proportional on mass charges, directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. Directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. तो ये भी आपको सिमिलरिटी इन दोनों लॉ की है. जब
इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो फिर से इसको भी एक बार याद करेंगे उस टाइम पे। अभी आपको, चलो अभी निकालो तो कितने लोग निकालते देखता मैं। जी की वैल्यू सीजीएस में निकालो, जी की वैल्यू सीजीएस में निकालो। मतलब करना क्या है, यूनिट को कन्वर्ट करना है। न्यूटन एसआई में, सीजीएस में क्या आता है उसका, डाइन। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। चलो करो, सीजीएस की वैल्यू निकालो कितनी आती, वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस निकालो कितनी आती। सबके हैंड लोअर करो, वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस। चलो हो गया, आया क्या सीजीएस में, दिखाऊं टका। किसका इसका आंसर आया, पहले हैंड लोअर करो, हैंड लोअर करो सेकंड चेक द। चलो सब लोग फिर से हैंड रेस करो, गर्ल्स में से, बॉयज में से हैंड रेस करो। वेरी गुड। तो 6.67 में कुछ चेंज आया क्या, 6.67 में कोई चेंज नहीं आया, वरचे ऍडमिट करत राहा ना। आता ते ज्यांचं नाव नाही ते आपोआपच रिमूव्ह होतात। अभी और एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे आप पे, रोल नंबर भी डालना कंपलसरी। रोल नंबर नहीं तो उसका यहां नंबर नहीं। जिनका वीडियो ऑन है, जिनका नाम नहीं है, दो आर नॉट एलिजिबल टू अटेंड नाउ, उनको 4-5 मिनट का रूम में। हम्म 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 वीडियो मग ते आपोआप रिमूव्ह होतं। कितना है इसका, सीजीएस में इसका आंसर आता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 -8, इट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर ऑफ -8। आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके देता हूं कैसे किया। सो जी की वैल्यू इन एसआई यूनिट्स क्या वैल्यू थी, इन एसआई यूनिट्स जी की वैल्यू थी 6.67 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अभी मुझे यह मालूम होना कि न्यूटन इज 10 टू द पावर ऑफ 5 9 एसआई सीजीएस यूनिट, मीटर 10 टू द पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर सीजीएस में, किलोग्राम 1000 ग्राम 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम। बस ये इसमें रखना है। सो ये 6.67 तो नंबर है, इसको कुछ नहीं होने वाला। न्यूटन इज 10 टू द पावर ऑफ 5 9, मीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर ऑफ 4, ये 2 ये स्क्वायर है इसलिए 10 टू द पावर ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम किलोग्राम का स्क्वायर है 10 टू द पावर ऑफ 6 ग्राम स्क्वायर, ये 3 ये 2 इसलिए। अब 5 + 4 9 - 6 दैट इज 3, 10 टू द पावर ऑफ +3 +3 - 11 दैट इज 8। 6.67 10 टू द पावर ऑफ -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आगे सीजीएस में वैल्यू अपॉन ग्राम स्क्वायर, इट द वैल्यू इन सीजीएस। तो वैल्यू ऑफ जी इन एसआई, वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस, ये दो वैल्यूज आपको याद रखने हैं। -8 लिखिए। नाउ अबाउट, अभी एमसीक्यूज कर जाते हैं। अबाउट यूनिट क्या है एमसीक्यूज इसके, कि जी इन एसआई इज नोन टू नो अस, जी इन एसआई, इन एसआई जी इक्वल टू 6.67 10 to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर।
इन CGS जो अभी निकाला हमने, G इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर ऑफ -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। अब दो क्वेश्चन रहते हैं, आंसर इनके एक दूसरे के अपोजिट आते और ऑप्शन में दोनों हमेशा रहते। कौन से? मैं दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आंसर आपको बताना है। G इन SI टू G इन CGS क्या रेशो आएगा? इधर मैं क्या लिख रहा हूं देखो, SI यूनिट ऑफ G टू CGS यूनिट ऑफ G, दोनों का आंसर मुझे आपको बताना है। सेम ही तो है, G इन SI, SI यूनिट ऑफ G, G इन CGS, CGS यूनिट ऑफ G, सेम है, कोई फर्क नहीं है। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिया था, या फिर आप इसमें देख सकते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उसमें SI यूनिट ऑफ सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 10 टू द पावर ऑफ -8, स्टीफन्स कांस्टेंट का SI यूनिट, स्टीफन्स कांस्टेंट का CGS यूनिट, स्टीफन्स कांस्टेंट इन SI, स्टीफन्स कांस्टेंट इन CGS। ये दो आंसर्स क्या आते हैं आप लोगों को ढूंढ के रखने हैं। इतना बता सकता हूं सर, एक दूसरे के अपोजिट आते। अगर ये आंसर सपोज A टू B आया तो ये B टू A आएगा, इज A टू B, दिस विल बी B टू A। ये आपको सोच, क्वेश्चन सेम लगता, बच्चे इसका आंसर जनरली कभी कभी उल्टा कर देते। हाँ, G इन SI, SI यूनिट ऑफ G, ये भी तो है, नो डिफरेंट है, ये आपको करके रखना है। तो ये G के बाद, अब पहले एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने यूज किया, उसको डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते कि हाउ टू डिफाइन। ऐसी डेफिनेशन आपने एक पहले पढ़ चुके हैं 10th में, इट इज स्पेसिफिक। देखते क्या है तो, नाउ हाउ टू डिफाइन G, टू डिफाइन G दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैसे डिफाइन करते। एक पॉइंट और आगे इसके बता देता, ये G की वैल्यू जो है 6.67 10 टू पावर ऑफ -11, G कौन से लॉ में यूज किया? न्यूटन्स लॉ में। तो ये कांस्टेंट कौन सा हो गया? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ में का वैल्यू है 6.67 10 टू पावर ऑफ -। तो ये G की वैल्यू किसने फाइंड की और कौन सी मेथड से फाइंड की? Who found out the value of G and by which method value of G is being found out? G की वैल्यू किसने निकाली, कौन सी मेथड से निकाली? Now about to define G by Newton's law, what you can write? By Newton's law of gravitation, if there are any two masses, कोई दो masses है, दो bodies भी हो सकती है, point masses, छोटी छोटी bodies, दो masses है m1 and m2, इन दोनों में का डिस्टेंस है r, इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालते हैं। बाय न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बाय न्यूटन्स लॉ इट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फ्रॉम दिस नाउ व्हाट यू कैन से, G इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये r स्क्वायर इधर आया, m1 m2 नीचे आया, सो व्हाट इज G इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये G की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है, ये हमेशा आप इसमें वैल्यूज कुछ भी रखो, m1 m2 r की f की, ये सारे एक दूसरे को वायरी करेंगे, m1 m2 चेंज होगा तो f चेंज होगा, r होगा तो भी f चेंज होगा, लाइक दिस। नाउ इफ इसको डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन करने के लिए, इफ ऐसा अगर लिया तो इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg each, m1 m2 दोनों 1 kg है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम r इज ऑल्सो 1 मीटर, इसका मतलब ये दोनों यूनिट मासेस है, दोनों के दोनों यूनिट मासेस है, दोनों को 1 मीटर रखा, मतलब यूनिट डिस्टेंस अपार्ट रखा, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो फिर क्या आएगा बताओ तो, m1 इज 1, m2 इज 1, r इज 1, बचा कौन फिर? ये 1 इंटू 1 इंटू ये 1 स्क्वायर, ये 1, तो व्हाट देन इक्वल टू, हेंस G कम्स आउट टू बी इक्वल टू, कितना आएगा G? G इक्वल टू 1 इंटू 1, ये 1 स्क्वायर, ये सब 1 हो गया, क्या कितना? G इक्वल टू व्हाट? F। G इक्वल टू कितना आएगा? F इंटू
1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, मतलब क्या बचा जी, हेंस जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ। जी इक्वल टू एफ कब आया, ये कंडीशंस रही तो हाउ जी कैन बी डिफाइंड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is the gravitational force in between two unit masses that is of 1 kg each when they are placed unit distance मतलब 1 meter apart. Universal gravitational constant is the gravitational force in between any two masses of 1 kg each when they are placed 1 meter apart. Universal gravitational constant is defined as gravitational force या फिर is equal to gravitational force. Universal gravitational constant is the gravitational force in between two unit masses, that is the masses of 1 kg each when they are placed 1 meter, that is unit distance apart. Universal gravitational constant is the gravitational force, hence G is equal to F when m1 equal to m2 equal to 1 kg and r equal to 1 meter, like this. So यहाँ इसके आप लोगों को डेफिनेशन बनानी है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने बना लेना, एक बार सुन लो फिर से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन एनी टू यूनिट मासेस यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, और gravitational force between two masses of 1 kg each when they are placed 1 meter apart, ऐसा लिखा तो भी चलता। Universal gravitational constant is the gravitational force in between any two unit masses in bracket 1 kg each when placed 1 meter apart, is in bracket 1 meter. So ये हो गया definition of G. तो universal gravitational constant ऐसी ही definition आप लोगों ने 10th में यूज की थी, एक याद है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ऐसे थी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस लेसन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन से मतलब है। जैसी डेफिनेशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की थी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया मतलब जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ उसकी 1 मीटर हो, ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद है कुछ 10th में का? 10th में का ये पार्ट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालना? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो यूज करते हैं, रो इक्वल टू आर ए बाय एल। ए इज 1 मीटर स्क्वायर, एल इक्वल टू 1 मीटर, देन आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर। Rho is the specific resistance, rho equal to R. वही definition. Specific resistance is equal to the resistance of a material or resistance of a conductor having unit length and unit area of cross. Having what? Unit area of cross section. Unit length and unit area of cross section, like this. So, ऐसी definition ये है. Universal gravitational constant is the gravitational force in between two unit masses placed unit distance apart. तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। तो ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे पॉइंट्स अब आपको एमसीक्यू की बुक्स में मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, एक ये लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, एक दूसरा किस बात करता, ऐसे कुछ पॉइंट्स आप ढूंढ के रखो, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स। मैंने 2 पॉइंट तो बता दिए, आंसर नहीं बताया। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इन दोनों में से एक, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों में से एक करेक्ट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स की वीक फोर्स। थर्ड,
फोर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी के बीच में अगर कोई थर्ड बॉडी आती है, थर्ड मास आता है, तो उससे अफेक्ट होता है कि नहीं होता? ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन देम और बॉडी बिटवीन दो बॉडी है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स, कोई थर्ड बॉडी उनके बीच में आ गई, थर्ड मीडियम बीच में आ गया, तो अफेक्टेड की नॉट अफेक्टेड? एटलीस्ट ये 5 पॉइंट भी ढूंढ के रखो। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, देन स्ट्रॉन्ग, वीक, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। 4 पॉइंट तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ऐसे एटलीस्ट 8 से 10 पॉइंट्स है अबाउट द 6 कोर्स। तो ये थेरोटिकल पार्ट है, ये थेरोटिकल आप लोग एक बार एमसीक्यू का कोई बुक लो, कल मैं आपको ये सारे बताऊंगा। मैंने आपको वर्ड भी बता दिए, बस उसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है आपको ढूंढना है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन वर्ड अगर इन दोनों से मिल भी गया, कंजर्वेटिव है तो क्यों है, नॉन कंजर्वेटिव है तो क्यों है, स्ट्रांग है तो क्यों है, वीक है तो क्यों है। बाद में थर्ड क्या बोला था, और एक नेचर कि ये फोर्स प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं रहती। अर्थ का मास हम सब करता, हम कितने रहे कितने भी रहे, करती, किसी को रिपेल नहीं करती अर्थ। तो अर्थ का फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये आप लोग एक बार, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेटिव, पेन एंड पेपर है, आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट में कि इसमें से आपको ढूंढ के रखना है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, ऐसे। और ये 5 तो मैंने बता दिए, ऐसे एटलीस्ट 3 पॉइंट्स और आप निकाल के रखो। लिख के नहीं रखता आप, कंजर्वेटिव खुद ढूंढ के रखते हैं दिस। तो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बारे में। तो न्यूटन्स लॉ, अब न्यूटन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूटन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में आपको न्यूटन्स लॉ जो है, दैट न्यूटन F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन स्क्वायर, ये कंटिन्यूअसली आपको यूज करना है। तो यूज करना है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी मैटर करती, दोनों बॉडी के बीच में का डिस्टेंस भी मैटर करेगा, मासेस भी मैटर करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम में आएगा। सपोज एक कोई बॉडी है, दिस बॉडी नाउ कंप्लीट मास इज से m, इस बॉडी के मैं 2 टुकड़े कर लेता, अब 2 टुकड़े सरी के भी हो सकते, लेकिन दोनों को मिला के मास उतना ही रहेगा। सपोज ये बॉडी अगर 10 किलो की है, इस बॉडी का मास कितना है, 10 किलो है, इसको मैं 2 टुकड़े करूंगा, ये एग्जांपल हो गया 10 किलो, मास कितना हो सकता है, इसके मैं 2 टुकड़े कर लूंगा, ये 2 टुकड़े कर लिया मैंने छोटे बड़े, एक पीस हो गया, दूसरा पीस हो गया, इसका मास है m1, इसका मास है m2। लेकिन m1 m2 कैसे है, m1 m2 आर लाइक दैट कि m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, इसी के 2 पार्ट है ना। ये अगर बॉडी 10 किलो की है, 2 टुकड़े करके 2 टुकड़े मिला के 20 किलो होंगे, मतलब कोई एक चीज ले लिया कि भाई 1 किलो की एक चीज ले लिया, उसके 2 टुकड़े किए तो दोनों मिला के 2 किलो हो गए, दोनों मिला के 1 ही किलो होगा। सो ये 10 किलो है या दोनों मिला के 10 किलो होंगे। लेकिन 10 में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है एक टुकड़ा 2 किलो का है, दूसरा 8 किलो का है, 1 किलो का है 9 किलो का है, एक 4 किलो का, एक 6 किलो का है, कैसे भी हो सकते हैं। अब इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा r, दे आर प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया, इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस हर बार उतना ही रखा जाएगा, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम रहने के लिए, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी मैक्सिमम, तो उसके लिए व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ m1 एंड m2, इन दो मासेस का रेशियो कितना रहने को होना, f to be for f to be maximum possible, for f to be maximum possible at given distance, distance r constant है, given distance r,
ये कांस्टेंट रहेगा. Given distance r, for f to be maximum possible at given distance r, that is constant, what should be कुछ questions like what should be m1 as to m2, what should be m1 as to m, or what should be m2 as to m. m2 as to m कितना रहने को होना. सेम क्वेश्चन फिर से आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक. यहां मास वहां चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम्स लॉ है वो कूलम्स लॉ इसके जैसा ही है. कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू दिस वन. कूलम्स लॉ में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है. वो चार्जेस के बीच में या मासेस के बीच में. मैं वहां पर लिख ही देता हूं एक बार कूलम्स लॉ कि व्हाट अबाउट द कूलम्स लॉ इज अबाउट. ये न्यूटन्स लॉ हो गया था यहाँ पे. मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख देता हूं कि कूलम्स लॉ क्या है एग्जैक्टली, व्हाट द कूलम्स लॉ इज अबाउट. आगे एक पेज पे लिखता है बीच में पीछे जाने से. ये आपको ढूंढना है. एक बॉडी को हमने डिवाइड किया दो बॉडीज के बीच में. एक बॉडी को ऐसे डिवाइड कर दिया एनी हाउ. दो पार्ट्स हो गए. दो पार्ट्स को आर डिस्टेंस पे रखा. दो पार्ट्स को आर डिस्टेंस पे रखने के बाद उनके बीच में का फोर्स निकाला. वो फोर्स कब मैक्सिमम रहेगा? जब वो फोर्स मैक्सिमम रहेगा तब इन मासेस का रेशियो क्या रहेगा? किसी भी एक का m1 का m से क्या रहेगा, m2 का m से क्या रहेगा, ये दोनों आपको निकालना. मैंने एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, अभी नहीं करूंगा, पहले आप लोग ढूंढ लो. अब न्यूटन्स लॉ और कूलम्स लॉ की सिमिलरिटी एक बार बता देता. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको कूलम्स लॉ पढ़ना है. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो व्हाट दैट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अबाउट. दोनों की सिमिलरिटी है इसलिए लिख रहा हूं यहां पे. ये मासेस के लिए है, मासेस m1 एंड m2. ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए है, q1 एंड से q2. ये मासेस और दोनों के डिस्टेंस r. सो व्हाट द फोर्स. ये रहा मास m2, मास m1, मास m2, डिस्टेंस दोनों में का r. दोनों में अट्रैक्टिव ही फोर्स रहेगा. इधर अब चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज q1, इलेक्ट्रिक चार्ज q2, डिस्टेंस दोनों में का r. अब ये चार्जेस से है उस पर भी डिपेंड करता है. लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स. तो यहां फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव भी हो सकता है. कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो चार्जेस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना, सो दैट दे विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. दे विल रिपेल ईच अदर विद सम फोर्स. ये अट्रैक्टिव, वहां रिपल्सिव, दोनों पॉजिटिव लेने की वजह से. एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेते तो अट्रैक्टिव हो सकता था. व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द लॉ देन. लॉ में क्या सिमिलरिटी है? हियर f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2. वैसे यहां पर f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2. f प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f प्रोपोर्शनल टू q1 q2. f इनवर्सली टू r स्क्वायर. इधर भी f इनवर्सली टू r स्क्वायर. f इनवर्सली टू r स्क्वायर, r इज द डिस्टेंस. सो ये दोनों लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसा भी बोलते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इनवर्स स्क्वायर लॉज. f इनवर्सली टू r स्क्वायर, f इनवर्सली टू r स्क्वायर. दे आर इनवर्स स्क्वायर लॉज. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब यहां पर g इज द कांस्टेंट. यहां पर कुछ और कांस्टेंट आता है, उसके बारे में तब पढ़ेंगे क्या आता कांस्टेंट. तो अभी डायरेक्ट मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं. 1/4 पाई एप्सिलॉन इज द कांस्टेंट. इस एप्सिलॉन को क्या बोलते जरा ढूंढ के मुझे बताना कल. और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है ये भी ढूंढ के बताना कल. ये आपका व्हाट इज एप्सिलॉन.
व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जीरो क्या है, उसको ढूंढ के मुझे बताना है कि व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो। अब स्टेटमेंट इक्वेशन क्या है इसका, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ G कांस्टेंट था, वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो फिर इधर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये पूरा कांस्टेंट रहता, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं इसको पहले प्रोपोर्शनलिटीज एक बार लिख लेता हूं, once I'll write the proportionalities and then write the equation, then formula लिखूंगा। तो पहले proportionalities बता दो क्या है। तो so by Newton's law F is proportional to m1 m2 upon r square, इधर electrostatic force is proportional to q1 q2 upon r square, ये m1 m2 upon r square, वो q1 q2 upon r square। अब कांस्टेंट लिखता हूं इनमें कि कहां कौन सा कांस्टेंट है, तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इधर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी है, ये आपको मुझे बताना है, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मिल सकता है, ये है क्या और उसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन जीरो। तो देखो दोनों लॉज बिल्कुल सिमिलर है, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसलिए दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसा भी कहा जाता। दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हिच लॉज, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉज, इन दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसा भी बोलते, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस स्टेटमेंट की वजह से। दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इनवर्स स्क्वायर लॉज, F इनवर्सली टू R स्क्वायर, F इनवर्सली टू R स्क्वायर, लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, डायरेक्ट चार्जेस। ये जो क्वेश्चन मैंने भी बताया कि एक मास को दो मासेस में स्प्लिट किया, ऐसे स्प्लिट किया कि इन दोनों में का फोर्स मैक्सिमम हो, तो ये रेशियो कितना, ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, एक पूरा चार्ज ये पूरा चार्ज क्यू है, उसको दो चार्जेस में स्प्लिट किया और कुछ डिस्टेंस पे रखा, तो उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम रहने के लिए ये रेशियो कितने आने को होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम क्वेश्चन, Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 Q, Q1 2 Q, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, कंसेप्ट दोनों में सेम लगने वाला है। इसलिए ये पूरा मास, ये दो मासेस, ये अगर पूरा चार्ज Q है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो M1 अपॉन M2, Q1 अपॉन Q2, ये सारे पॉइंट्स आपको चार्जेस के जो मासेस का रेशियो आएगा वही चार्जेस का आने वाला है। तो ये सिमिलरिटी हो गई न्यूटन्स लॉ और कूलम्स लॉ के बीच में, कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। तो द सिमिलरिटी बिटवीन न्यूटन्स लॉ कूलम्स लॉ, ये दोनों हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया न्यूटन्स लॉ के बारे में। अभी न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ वेक्टर फॉर्म इज टू बी लर्न। न्यूटन्स लॉ आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन, न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो पढ़ना है, देयर विल बी सम डायरेक्शंस, तो न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शंस आएंगे, डायरेक्शंस डिस्टेंस कहां से गिनना के बारे में, मींस नेक्स्ट टास्क अबाउट द न्यूटन्स लॉ। न्यूमेरिकल्स अभी और बाकी है, ये सिर्फ शुरुआत है, एक एग्जांपल बताया। न्यूमेरिकल्स अगर पढ़ने हैं आगे के, तो उसके लिए आपको काफी सारे पॉइंट्स हैं, न्यूट्रल पॉइंट, कुछ पॉइंट आपको बता के रखना हो जो आपको ढूंढ के रखने हैं, विच पॉइंट यू हैव टू फाइंड फॉर दिस न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के लिए कौन से पॉइंट आपको फाइंड करने हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, इसका काम थ्योरेटिकल है, ज्यादा काम इसका। बाद में न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हाँ, व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ये दो पॉइंट्स न्यूमेरिकल में आते, न्यूटन्स लॉ बेस्ड जो भी है। बाद में आपको फोर्सेस निकालने हैं, मैं कल के क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं। सपोज 3 मासेस है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 मासेस रख दिए, ये ट्रायंगल
तीन कॉर्नर पे तीन मासेस रखती है यहाँ पे, तो तीनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स कितना रहेगा। यहाँ कुछ मास है, ट्राइंगल सिर्फ डिस्टेंसेस बताएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है सपोज, तो तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, मतलब ये आर तो ये भी आर, ये भी आर। मासेस से M1 M2 M3, ये मासेस इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ऑफ देम ड्यू टू अदर टू, वन पे फोर्स निकालना है ड्यू टू 2 and 3। मोस्ट प्रोबेबली यहां मासेस इक्वल रहते हैं, अदरवाइज डायग्राम फिर सिमेट्रिक नहीं रहती। तो मासेस अगर इक्वल है तीनों तो फोर्स बराबर बीच में आ जाता है इन दोनों। तो दोनों मासेस अगर इक्वल है तो तीनों मासेस, अभी मैं यहाँ अलग अलग लिख रहा हूं, तो फाइंड द फोर्स ड्यू टू M2 and M3 on M1, और फाइंड फोर्स ड्यू टू M1 and M2 on M3। ऐसा किसी दो का फोर्स तीसरे पे निकालना है। तो ये ट्राइंगल हो गया, ऐसे रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसे भी हो सकते हैं इमेजेस, इधर रेक्टेंगल और स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के चार कॉर्नर पे चार मासेस रखेंगे, उन चार मासेस को अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, या फिर तीन मासेस दे सकते हैं, चौथा मास पूछ सकते हैं। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस है, ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, लाइक दिस। साइड ऑफ द स्क्वायर इज L। तो नेट फोर्स ऑन से 1 ड्यू टू 2, 3 and 4, 3 भी अट्रैक्ट करेगा, 2 भी अट्रैक्ट करेगा, 4 भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स कितना आएगा, दैट इज टू बी कैलकुलेट। यहाँ कुछ ज्योमेट्रिक पार्ट्स आपको लगेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रूट 2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड, रूट 2L, पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन कुछ बाकी है जो हमको पढ़ने हैं। अभी जस्ट एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में था अबाउट द मासेस, अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, कॉम्बिनेशन में चार्जेस और मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मासेस मतलब ग्रेविटेशन। तो दोनों क्वेश्चन था कि अर्थ पे अगर हम लोग है तो ग्रेविटी भी है, स्पेस में गए तो ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। दो बॉडी के ऊपर, उन दो बॉडीज के ऊपर चार्ज है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को कुछ मासेस है तो मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उनका भी। फिर आपके फील्ड छोड़ चले गए, वहां ग्रेविटी नहीं है लेकिन अभी भी उनके ऊपर चार्ज तो है, फिर चार्जेस की वजह से फोर्स कितना बचेगा। ऐसे कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन इसमें रह सकते हैं, क्वेश्चंस में भी इन कॉम्बिनेशन आल्सो। तो अभी आपने जो पार्ट आज पढ़ा, ऑल दोस पार्ट्स, तो कल हम लोग ये सारे ये जो पॉइंट्स है कल पढ़ने वाले, आप लोग ये पॉइंट ढूंढ के रखो। कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए इसके पहले भी छोड़ दिए कि जो आपको ढूंढ के रखने हैं। तो आज क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते। अभी ऐसा बहुत सारा एक दिन में होने वाला है, या आप लोग डे टू डे रोज के रोज आपके नोट्स अपडेट कर लो। यहाँ से आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये कल के क्वेश्चन का होमवर्क भी बाकी है। 3 पॉइंट छोड़े मैंने आप लोगों के लिए। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना है, मास ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून अर्थ कितना है, ये पॉइंट, ये रेशो क्या है, ये मासेस क्या है, इनर्शियल मास क्या है, ग्रेविटेशनल मास क्या है, उसका रेशो कितना आता। फिर एट द इंफिनिटी का मतलब क्या, व्हाट डू द इंफिनिटी, ये आपको मुझे कल बताना है। जब काम पड़ेगा तो पूछूंगा मैं उसको। ये काम पड़ेगा आपको इन द टॉपिक ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तब इसका काम पढ़ने वाला है। देन अबाउट ये न्यूटन्स का लॉ ओरिजिनल फॉर्म में पहला, बाद में मॉडिफाइड फॉर्म अपने बुक में है। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट, आउटसाइड इट, ये समझा तो आपके इनसाइड कुछ आएगा। तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी आउटसाइड इट, तो बॉडी अगर इनसाइड है तो क्या होता है कि मैंने तभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि जितना रिमेनिंग मास है उसका फोर्स उसके ऊपर लगेगा। इसका काम एक बार पढ़ने वाला है। मॉडिफाइड लॉ कौन सा है, तो बाद में उसने पार्टिकल के बारे में सोचा। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, दोस टू पार्टिकल्स मे बी ऑफ द सेम बॉडी, ए के दो पार्टिकल, बी के दो पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर ए में का एक पार्टिकल, बी में का एक पार्टिकल हो सकता है। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो एक बॉडी में का है या अदर बॉडी में का है। देन ये न्यूटन्स लॉ पूरा स्टेटमेंट मैंने लिख के दिया आप लोगों को यहाँ पे, that every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them and acts along the line joining them.
दैट इज F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली टू r स्क्वायर लाइक दिस। ये बाद में इसमें जो कांस्टेंट है कांस्टेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू SI यूनिट में कितनी है, उसकी वैल्यू CGS में कैसे निकालना था वो भी निकाल के बताई। बाद में 2 क्वेश्चन आपको दिए, ये रेशियो आप ढूंढ के रखो क्या है। तो SI की वैल्यू मालूम है, CGS में की वैल्यू में, G इन SI टू G इन CGS, SI यूनिट ऑफ G टू CGS यूनिट ऑफ G। मैंने तभी बताया था ये आंसर अगर A/B आया तो B/A आता। क्या आता है एग्जैक्टली आप बताओ मुझे कल। आंसर ऑलरेडी आ चुका है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसके पहले आंसर आया हुआ है इसका, अब समझ में आया तो आपको आएगा। तो बाद में हाउ टू डिफाइन दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन सिमिलर टू दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ था कि कोई कंडक्टर लेते, उस कंडक्टर का एरिया, कंडक्टर की लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होना मतलब 1 मीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ भी यूनिट होना मतलब 1 मीटर। तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर है, तो उस आने वाला रेजिस्टेंस उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैसे ये G ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस ऑफ 1 kg इज प्लेस 1 मीटर अपार्ट। ये पॉइंट। बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, स्ट्रॉन्ग, वीक, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, डिपेंडेंट ऑन मीडियम, इंडिपेंडेंट मीडियम। ऐसे 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, 3 पॉइंट और है आपको ढूंढ के रखने हैं। देन एक बॉडी को 2 बॉडी में स्प्लिट अप कर दिया तो उन दोनों पार्ट्स के बीच में फोर्स अगर मैक्सिमम आने को होना तो फिर इनका रेशियो क्या आने को होना, उन दोनों का एक दूसरे से, m1 का m से, m2 का m से क्या रेशियो आने को होना, ये क्वेश्चन। फिर मैंने अभी लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में की सिमिलरिटी क्या है, दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं, बिकॉज F इज इनवर्सली टू r स्क्वायर इन बोथ साइड्स। पूरा ये G इधर कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, ढूंढ के बताओ मुझे क्या है। तो बाद में क्वेश्चन जो हम लोगों को कल पढ़ने हैं।